میں تمام بہن بھائیوں کو جو اس وقت آن لائن آگے ہیں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں کہ خداوند خدا شروع سے لے کے آخر تک ہمارے ساتھ اپنے نام کو جلال دینے کے لیے اپنے کلام کی بارش سے ہمیں دھوئے، ہمیں پاک صاف کرے، اور آپ کی وال پہ جتنے ایڈڈ ہیں اکثر یہ بات میں کہتا ہوں، اور ہر خادم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں جتنے لوگ اب 20 لوگ سن رہے ہیں تو اسی وقت میں 100 لوگ سن لیں۔ تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنا حصہ ڈالیں، لوگوں کو بتائیں کہ بردر جاوید گل اس وقت آن لائن ہے، تو آپ لوگ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر، غیر ضروری کاموں کو چھوڑ کر خداوند کے قدموں میں آئیں اور خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے پریپیئر ہوں، تیار ہوں، کاپی پینسل لے کے بیٹھیں تاکہ والا جات لکھیں اور دوسرے بہن بھائیوں کو شیئر کریں۔ تو میں جتنے بہن بھائی آگے ہیں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سیکرٹ کمنگ آف جیزس کرائسٹ ہے۔ ہم اکثر سیکنڈ کمنگ آف جیزس کرائسٹ کے بارے میں سیکھتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، کنونشنیں ہوتی رہی ہیں۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ سیکنڈ کمنگ آف جیزس کرائسٹ خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی کے حوالے سے ہم سیکھتے رہے۔ تو اب جب میں نے اس کلام کی اسٹڈی کی، اس کلام کو پڑھا، تو مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ آمد ثانی تو ہے ہی، اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ تو آمد ثانی کے 2 حصے ہیں، ایک ہے پوشیدہ آمد اور ایک ہے ظاہرہ آمد۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پوشیدہ آمد کے حوالے سے سیکھیں گے، سیکرٹ کمنگ آف جیزس کرائسٹ۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ بائبل کیا بتاتی ہے وہ ہم اکارڈنگ ٹو بائبل ہم کلام کو سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس خوبصورت مضمون کو سیکھیں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ٹی وی چینل کو DICPF ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو وقت پر ملتی رہے اور آپ نئے سے نئے مضمون کو جو ہے سیکھ سکیں اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو لہٰذا آئیں ہم اب باقاعدگی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں سیکرٹ کمنگ آف جیزس کرائسٹ، اور یہ بائبل میں ایسا لفظ ہے پوشیدہ آمد یا ریپچر کا ذکر، اس کو ہم انگلش میں ریپچر کہتے ہیں، اور ریپچر کا لفظ جو ہے بائبل کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا، یہ لطینی سے لیا گیا ہے، اور آمد ثانی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا جیسا میں نے پہلے بتائی گئی ہے۔ تو آج ہم اس تھوڑے سے وقت میں یہ سیکھیں گے کہ کلیسیا کے ڈھائے جانے کا نظریہ کیا ہے، اور جو نمبر 2 جو ہے مفسرین کی رائے کیا ہے، نمبر 3 کلیسیا کب اٹھائی جائے گی، نمبر 4 کیسے اٹھائی جائے گی، نمبر 1 میں نے بتایا یعنی کلیسیا کے اٹھائے جانے کا نظریہ کیا ہے، پھر مفسرین کی رائے، کلیسیا نمبر 3 کب اٹھائی جائے گی، نمبر 4 کیسے اٹھائی جائے گی، خاص باتیں جب خداوند یسوع مسیح
اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئیں گے، یعنی کلیسیا کو لینے کے لیے آئیں گے۔ نمبر 7، کلیسیا کے ٹھائے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کلیسیا کے ٹھائے جانے کا کیا نظریہ کلام مقدس سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے یا نہیں۔ جس طرح پرانے عہد نامے میں خداوند یسوع اور خداوند خدا نے قوم بنی اسرائیل سے وعدہ کیا، پرانے عہد نامے میں قوم بنی اسرائیل خدا کی چنی ہوئی قوم تھی، الگ کی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے نئے عہد نامہ میں کلیسیا خدا کی چنے ہوئے لوگ ہیں، الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، چھڑائے ہوئے لوگ ہیں، آزاد کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اور خدا نے جس طرح پرانے عہد نامے میں قوم بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیے ہوئے ملک کے ساتھ عہد کیا، وعدہ کیا، اسی ملک کنعان دینے کا، تو اسی طرح نئے عہد نامے میں بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنی کلیسیا کے ساتھ نئے یروشلم کا وعدہ کیا۔ اگر آپ حوالہ جات نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے پیدائش 13 باب اس کی 12 اور 13 آیات کی سٹڈی کریں۔ یہاں خدا نے ابراہیم کے ساتھ ملک کنعان کا وعدہ کیا۔ پھر دوبارہ حوالہ نوٹ کریں، پیدائش 15 باب جینیسس چیپٹر 15 ورس 18 to 21۔ تو جہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ خدا نے قوم بنی اسرائیل سے، وہ خدا کی چنی ہوئی قوم تھی، اس طرح مسیح یسوع کلیسیا خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ ملک کنعان کا وعدہ کیا گیا، ہمارے ساتھ روحانی یروشلم کا وعدہ کیا گیا۔ مسیح یسوع کا وعدہ سنیے گا، گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورس 2 to 4، مقدس یوحنا رسول کی انجیل 14 باب اس کی 2 سے 4 آیت تک۔ یہ حوالہ نوٹ کریں جو خداوند یسوع مسیح نے میرے سے، آپ سے، کلیسیا کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میں جاتا ہوں تاکہ جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں آ کر تمہیں اپنے پاس لے لوں۔ ہیلیلویا۔ تو آج ہم جو کلیسیا، جو پہلی بات ہے، نظریہ جو ہم سیکھ رہے ہیں، کلیسیا کے ٹھائے جانے کے نظریے کے حوالے سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کلیسیا کے ٹھائے جانے کے حوالے سے جو دوسرا سوال تھا، یعنی اپنوں نے اوپر جاتے دیکھا اور اپنے ہی آتے دیکھیں گے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اعمال پہلا باب اس کی 12ویں آیت، ایکٹ چیپٹر 1 ورس نمبر 11۔ آئے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف؟ اپنوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، چاہے وہ مسیحی ہوں یا غیر اقوام سے ہوں، وہ کلیسیا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو جائے کہ وہی لوگ اس کو دیکھیں گے جو اس کے اپنے ہیں،
जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। और उसके बाद कलीसिया के अभी मैं जो आप लोगों के सामने बता रहा हूं कि कलीसिया के ठाए जाने का नजरिया बता रहा हूं। पहला पॉइंट मैंने खुदावंद के कलाम में से मैंने बताया कि जिस तरह खुदा ने कौम बनी इसराइल से वादा किया, उसी तरह से खुदा ने हमारे साथ वादा किया है यरूशलेम का। फिर मैंने अभी तक ये कॉन्सेप्ट या नजरिए की बात हो रही है। दूसरा, अपनों ने ऊपर जाते देखा, अपने ही आते हुए देखेंगे। और फिर नंबर 3, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। लूका 17 बाब उसकी 34 आयत, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17 वर्स नंबर 34। नंबर 4, दूसरी बार उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर कट मसीह यीशु की पोशीदा आमद को ज़ाहिर करता है कि दूसरी बार उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। जैसे ज़बूर 130 में हजरत दाऊद कहता है कि जैसे पहरे वाला सुबह की राह देखता है, मैं उससे बढ़कर खुदामंद की राह देखता हूँ जो खुदा के मुंतजर हैं। जो लोग खाने पीने में लगे हुए हैं, ब्याह शादियों में लगे हैं, दुनिया की फिक्रों में लगे हुए हैं, तो जिन्होंने कबूल नहीं किया और वो इस पोशीदा आमद में शरीक नहीं होंगे, वो जमीन पर ही रहेंगे। इसका हवाला नोट करें, अबरानियों 9 बाब उसकी 27 और 28 आयत है। अबरानियों 9 बाब उसकी 27 और 28 आयत है। बगैर खून बहाए मुआफी नहीं, यीशु ने खून बहा दिया। अब आगे लिखा कि दूसरी बार उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं, जो उसके मुंतजर हैं, जो दिन रात दुआएं करते हैं कि यीशु राजा जमीन पर आए। अगर आप दुआ नहीं कर रहे तो आप भी नए सिरे से पैदा हों, मसीह यीशु का अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और खुदामंद की पोशीदा आमद में शरीक होने के लिए तैयारी के लिए दुआ करें। तो ये 4 पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए और चौथे पॉइंट पर हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ रैप्चर। ये पहला पॉइंट है, कलीसिया के ठाए जाने का नजरिया। अब हवाला जात हम पढ़ेंगे नहीं, अब पहले भी हम नहीं पढ़े, मैं सिर्फ बयान कर रहा हूँ। मीका 7 बाब 2 आयत, यहाँ लिखा है कि ईमानदार दुनिया से उठा लिए गए। और फिर मकाशवा 3 बाब 10 आयत है, मैं उस बड़ी मुसीबत से उनकी हिफाजत करूंगा। पहला तसल्लीकियों 4 बाब उसकी 16 और 18 आयत को पढ़कर देखें कि जो जिंदा हैं वो तब्दील हो जाएंगे, जो कब्रों में हैं, जो मसीह यीशु में सोए हैं, वो जब आखिरी सिंगा फूंका जाएगा तो वो जी उठेंगे। तो लिहाजा अभी तक मैं कॉन्सेप्ट के हवाले से बयान कर रहा हूं। जब वक्त आएगा कि कलीसिया इन मकानों में पहुंचाई जाए तो कलीसिया जमीन पर से उठाई जाएगी, आसमान पर पहुंचाई जाएगी। इस वाकया को कलीसिया का उठाया जाना या रैप्चर कहते हैं। ये एक खास वाकया है और जो खास लोगों के लिए खास वक्त और खास तरीके से वजूद में आएगा। लफ्ज रैप्चर कलाम मुकद्दस में इस्तेमाल नहीं हुआ, ये लतीनी लफ्ज रैपर से लिया गया है। रैपर जिसका मतलब है झपट कर निकाल लेना। जैसा कि पहला करंथियों 3 बाब में इसका जिक्र है कि जो आग में है उनको झपट कर निकालना। तो इस वक्त ईमानदारों की
ضرورت ہے کہ پکے ہوئے کھیت کو کاٹیں جو آگ میں ابلیس کے آگ میں جل رہے ہیں، ہم ان کو اس آگ سے، گناہ کی آگ سے جھپٹ کر نکالیں۔ اور بعض اوقات جیسے میں بتایا جھپٹ کر نکالنا، یا انگلش میں اس کو کاٹ اپ بھی کہا گیا ہے، اور اردو ترجمے میں اٹھایا جانا۔ کلیسیا سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ کراچی میں ہم پوری ورلڈ کی بات نہیں کر رہے اس وقت، کراچی میں کتنی کلیسیاں ہیں؟ بے شمار کلیسیاں ہیں، لیکن یہ کلیسیاں نہیں ہیں، یہ تنظیمیں ہیں۔ کلیسیا ایک ہی ہے، جیسے میتھوڈسٹ چرچ ہے، پینتیکاسٹل چرچ ہے، پریسبٹیرین ہے، اور کیتھولک چرچ ہے۔ ان کی آگے بے شمار مشنیں ہیں، آگے ان کے برانچز ہیں، صحیح لفظ ہے کہ ان کی آگے بہت ساری برانچز ہیں۔ تو اتنی کلیسیاں تو نہیں ہو سکتی، ایک ہی کلیسیا ہے، خدا نے ایک ہی کلیسیا بنائی ہے۔ تو یہ جتنی بھی کہتے ہیں کہ یہ میری کلیسیا ہے، تو یہ جو پاسٹر یہ لفظ کہتے ہیں کہ میری کلیسیا، یہ لفظ صحیح نہیں ہے۔ کلیسیا یسوع کی ہے۔ If you agree with me, write yes۔ کلیسیا ایک ہی ہے جو سن 2000 سے بن رہی ہے۔ کلام مقدس میں اس کے بارے میں آپ حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ باقی ساری کی ساری جو ہیں وہ کلچرل کلیسیائیں ہیں، اور ان کے نام جو ہے کلیسیا کے رجسٹر میں تو لکھے ہوئے ہیں۔ اور متی 16 باب اس کی 18ویں آیت میں میرا خیال ہے، یہ حوالہ میں مس کر گیا، جہاں پر خدا یسوع مسیح سے پطرس سے یہ بات ہو رہی ہے کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ متی 16 باب اس کی 18ویں آیت ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے عہد کیا کہ تو پطرس ہے، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ کلیسیائیں کا لفظ نہیں استعمال ہوا۔ تو لہذا اس بات کو آپ نوٹ کریں، کلیسیا ایک ہے۔ جتنے لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہماری کلیسیا میں آ جائیں، ہماری مشن، یہ ساری مشنیں ہیں، یہ ساری تنظیمیں ہیں، یہ کلیسیاں نہیں ہیں۔ جتنے نام آپ کو آتے ہیں یہ تنظیمیں ہیں، یہ انسان کی بنائی ہوئی تنظیمیں ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کو جاب نہیں ملتا اور کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اب اتنی تنظیمیں بن گئی ہیں کہ نام ہی کم پڑ گئے ہیں۔ بڑے عجیب و غریب لوگ نام رکھ کر جو اپنی تنظیمیں اور مشنیں بناتے، دھڑا دھڑ بناتے چلے جا رہے ہیں۔ تو لہذا یاد رہے کہ کلیسیا ایک ہی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، کلیسیا جو ہے انویزیبل لوگوں کی جماعت ہے، جو اپنوں میں سے جنہوں نے توبہ کی وہ کلیسیا میں شامل ہو رہے ہیں، جنہوں نے باہر سے توبہ کی غیر میں شامل ہو۔ تو پہلا پوائنٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ سیکھا ہے۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ خیال اتنا ہی کافی ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ سوال نمبر 2، مفسرین کی
राय रैप्चर के हवाले से। नंबर 1, पहला नजरिया पार्शियल रैप्चर। क्या कहा मैंने? पार्शियल रैप्चर, जिसको जुज़वी तौर पर कलीसिया का उठाया जाना कहते हैं। इस मकतबे फिक्र की तालीम का खुलासा ये है कि सब निजात याफ्ता लोगों में से मखसूस ग्रोह उठा लिया जाएगा और बाकी छोड़ दिए जाएंगे, और गलत फहमी की बुनियाद लूका 21 बाब और उसकी 36 आयत, फिर मत्ती 24 बाब उसकी 41 और 42 आयत है। दूसरा नजरिया, इसको इस मकतबे फिक्र के लोग या थियोलॉजियन या मुफस्सरीन इसको दी पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर थ्योरी कहते हैं। कलीसिया बड़ी मुसीबत के बाद आसमान पर उठाई जाएगी। तो ये नजरिया भी कलाम के मुताबिक दुरुस्त नजर नहीं आता। तीसरा नजरिया, दी मिड ट्रिब्यूलेशन रैप्चर थ्योरी। कलीसिया बड़ी मुसीबतों के दौरान 3.5 बरस के बाद आसमान पर उठाई जाएगी। तो ये नजरिया भी कुछ लोग इसको सही समझते हैं, लेकिन कलाम के मुताबिक ये नजरिया भी कमजोर नजर आता है। ये तीसरा नजरिया मैंने आपसे शेयर किया। और चौथा नजरिया, दी प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर थ्योरी। ट्रिब्यूलेशन का मतलब है मसाइल, मुसीबतें। जब मैं लफ्ज ट्रिब्यूलेशन इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसका मतलब है दुख, तकलीफ, आज़ारसानी, ताकि आप लोग समझे कि इसका मकसद क्या है। तो इस मकतबे फिक्र के लोगों का कहना यह है कि 7 साला बड़ी मुसीबतों से पहले उठाई जाएगी, और मैं भी इस नजरिए का हामी हूं। दानियल नबी भी इस नजरिए का हामी है। ये नजरिया कलाम मुकद्दस के मुताबिक दुरुस्त नजर आता है। चौथा नजरिया ये दावा करता है कि दानियल के 70वें हफ्ते के आगाज से पहले कलीसिया जो है आसमान पर उठाई जाएगी। ये हवाला कल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और दानियल के 70 हफ्तों की रोया हम जरूर किसी वक्त बयान करेंगे, लेकिन इस वक्त आप हवाला नोट कर लें। दानियल 9 बाब उसकी 27 आयत है। और 62 हफ्तों की रोया, फिर 1 हफ्ते की रोया, तो 62 प्लस 7 69 हफ्ते। ये हफ्ते 69 हफ्तों की रोया पूरी हो चुकी है, और 1 हफ्ता रहता है। 1 हफ्ता क्यों रहता है? क्योंकि कलीसिया बीच में आ गई। कलीसिया के बीच में आने से 70वां हफ्ता रुक गया। इसका हवाला आप लोग नोट कर लें। रोमियो 11 बाब उसकी 25 और 26 आयत है। यह हवाला अभी आपके सामने डाल दिया जाएगा। रोमन चैप्टर 11 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 25 एंड 26। यानी एक हिस्सा जो है सख्त कर दिया गया ताकि गैर कौमें पूरी जो है वो नजात में, कलीसिया में शामिल हो जाएं।
تو میں نے یہ کہا کہ 17ویں ہفتے کی رویا 69 ہفتوں کی رویا پوری ہو چکی ہے. یہ ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے اور منڈے کو کریں گے. آپ یاد رکھیں منڈے کو 70 ہفتوں کی رویا کے بارے میں ہم سیکھیں گے. ابھی میں نے تھوڑا سا ٹچ دیا ہے. اور یہ ہفتہ یہ مصیبت کا جو ہفتہ ہے یہ 7 دن جو ہیں کا دور جو ہے جو بڑی مصیبت کا دور ہوگا. یعقوب کی مصیبت کا دور اس کو کہا گیا ہے. آخری 3 جو سال ہیں اور یہ جو ہے لکھا ہے نصف ہفتہ نفس ہفتہ جو ہے وہ یہودیوں سے مخالف مسیح عہد باندھے گا. یہ میں نے پہلے یہ آپ لوگوں سے شیئر کر چکا ہوں. تو پرانے جو مضمون بدھ کو میں نے پیش کیا تھا شاید اس میں آپ اس کو کچھ حصہ اس کا ملے گا. باقی ہم منڈے کو مزید سیکھیں گے. کلیسیا کب اٹھائی جائے گی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ کلیسیا کب اٹھائی جائے گی. تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بہن بھائی آن لائن آ گئے ہیں میں آپ سب کو ایک بار پھر جو نئے بہن بھائی آئے ہیں میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں آپ سب بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ہمیں حکمت دانائی اور فہم عطا کرے. کلیسیا کب اٹھائی جائے گی؟ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے حوالے سے 4 خیال پیش نظر ہیں. چونکہ اس واقعہ کا تعلق کلیسیا کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب جب کلیسیا کا شمار پورا ہو جائے گا تو اس وقت کلیسیا اٹھا لی جائے گی. تو اب ہمیں معلوم نہیں یہ کلیسیا کا شمار خدا جانتا ہے. آپ مکاشفہ 6 باب اس کے 9 آیت میں جب 7ویں مہر کھولی گئی تو وہاں پر صحیح لفظ پڑھ لیں کہ کون سی مہر کا ذکر ہو رہا ہے. تو جب وہ مہر کھولی گئی تو قربان گاہ کے نیچے کی روحیں چلا چلا کر کہتی ہیں کہ تو کب ہمارا انصاف نہیں کرے گا. تو وہ شہید روحیں پکار کر کہتی ہے کہ ٹھہرے رہو تھوڑی مدت تک. تمہارے اور کچھ بھائی ہیں جو شہید ہونے والے ہیں ان کا شمار بھی ابھی تک پورا نہیں ہوا. تو لہذا کلیسیا ابھی تک اس کا شمار پورا نہیں ہوا اور جب کلیسیا کا شمار پورا ہو جائے گا تو کلیسیا زمین پر سے اٹھا لی جائے گی. اور یہ حوالہ پہلے میں بتا چکا متی 16 باب 18 آیت پہلی صدی سے کلیسیا بن رہی ہے ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. اس لیے کلیسیا ابھی تک زمین پر موجود ہے. جب کلیسیا کی تعداد مکمل ہو جائے گی اس وقت کلیسیا زمین پر سے اٹھا لی جائے گی. اور پالوس رسول کا بیان میں نے آپ سے پہلے شیئر کر دیا رومیوں 11 باب 25-26 آیت ہے. اور اب پالوس رسول کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بات سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں. وہ ایسا ہی رہے گا چونکہ ہمیں معلوم نہیں کلیسیا کی تعداد کتنی ہے اور تعداد کب پوری. کلام مقدس میں کچھ اشارے ملتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ کلیسیا اب اٹھائی جانے والی ہے. جب یہ علامات پوری ہوں تو جان لینا کہ کلیسیا اٹھائی جانے والی ہے. ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ کلیسیا کب اٹھائی جائے گی. یہ وقت اور میعادوں کو خدا نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے. ایمال پہلا باب اس کی 6 اور 7 آیت کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں. تو پہلا پوائنٹ میں نے بتایا. پہلا پوائنٹ یہ کہ جب مخالف مسیح یہودیوں کے ساتھ 7 سالہ عہد باندھے. ابھی تک مخالف مسیح نے عہد نہیں باندھا. آنے والے دنوں میں عنقریب جو مخالف مسیح عہد باندھے گا 1 ہفتے کا جس کا ذکر میں نے پہلے کیا دانیل 9 باب 27 ہے. 1 سال 1 ہفتے کا عہد باندھے گا. نصف ہفتے میں وہ عہد توڑ دے گا. پہلے نصف ہفتے میں جو امن و امان ہوگا
पहले 3.5 साल में वो हैकल बना के देगा और फिर आखिरी 3.5 साल में अपना चेहरा दिखाएगा। पहले वो ऐसे खामोशी के साथ ज़ाहिर होगा जैसे कि उनका बड़ा हमदर्द है, लेकिन बाद में वो उसकी असली सूरत सामने आएगी और हैकल में बैठ के कहेगा कि मुझे सजदा करें। दूसरा तसल्लीकियों 2 बाब उसकी 3 और 4 आयत है। उसमें बैठकर कहेगा कि मैं खुदा हूँ, मेरी पूजा करो, और वो कौम बनी इसराइल पूजा नहीं करेगी और वो हैकल को तोड़ देगा। और ये बड़ी मुसीबत जो मैंने कहा, ये याकूब की मुसीबत का दौर होगा। ये पहला पॉइंट बताया, जब मुखालिफे मसीह अहद बांधे तो जान लेना कि अब कलीसिया उठाई जाने वाली है। नंबर 2, जब मिडल ईस्ट में अमन कॉन्फ्रेंसों में कामयाबी और सुलह की बातें नजर आए तो आप जान लेना कि अब कलीसिया उठाई जाने वाली है। ये दूसरा इशारा मैंने दिया है। तीसरा इशारा, जब मुखालिफे मसीह EEC इकोनॉमिक यूरोपियन कंट्री के 10 मेंबरान में से 3 को उखाड़ कर 8वां खुद बन जाए तो आप जान लेना कि अब कलीसिया उठाई जाने वाली है। और इसका हवाला आप नोट कर ले। जो मैं बात कह रहा हूं, मैं मुकम्मल स्टडी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मकाशफा 17 बाब उसकी 9 से 13 तक आप पढ़ लें। तो जब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये इशारे पूरे होते नजर आए तो समझ लेना कि कलीसिया उठाई जाने वाली है। तो लिहाजा तीसरा पॉइंट तक कलीसिया कब उठाई जाएगी उसके हवाले से मैंने आपके साथ उस कलाम को जो कुछ मैंने बाइबल से सीखा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जब ये 3 पॉइंट पूरे होने लगे या शुरू हों तो आप समझ लेना कि कलीसिया उठाई जाने वाली है। नंबर 4, कलीसिया कैसे उठाई जाएगी। सवाल नंबर 4, कलीसिया कैसे उठाई जाएगी। नंबर 1, फानी और खाकी बदनों को खुदा तब्दील करेगा, क्योंकि लिखा है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते और ये खुदा की बादशाही में के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। वाला नोट करें। पहला करंथियों 1 Corinthians chapter 15 50 से 53 आयत तक। ओके, 1 Corinthians chapter 15 starting from verse 15 to 53। यानी कलीसिया कैसे उठाई जाएगी, यानी ये बदन जो इस वक्त हमारा बदन है, ये बदन जो है खुदा जो है जलाली बदन इसको देगा। हम जो जिंदा हैं खुदा हमें जलाली बदन देगा और जो कब्रों में हैं उठेंगे उनको भी जलाली बदन दिया जाएगा। और उसके बाद फिलिपियों 3 बाब दूसरा हवाला नोट करें कि कलीसिया को जलाली बदन दिया जाएगा। और दूसरा हवाला, दूसरा रेफरेंस मैं शेयर कर रहा हूं फिलिपियों 3 बाब उसकी 21 आयत। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स नंबर 21। क्या लिखा जी, वो अपनी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है हमारी पस्ताली के बदन को अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तीसरा वाला नोट करें आप 1 Thessalonians chapter 4 starting from verse 16 and 17। पहला तसल्लीकियों 4 बाब 16 और 17 है। उठाए जाने से पहले कलीसिया को जलाली बदन ताक किए जाएंगे। कलीसिया जलाली बदनों में
आसमान पर उठाई जाएगी। जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा तो कलीसिया उठाई जाएगी। ये तकरीबन मेरा ख्याल 4 रेफरेंस मैंने कलीसिया कब उठाई जाएगी या कैसे उठाई जाएगी इसके हवाले से शेयर किए। सवाल नंबर 5, जब कलीसिया उठाई जाएगी तो उस वक़्त के हालात या मंजर किस किस्म के होंगे? चंद खास बातें आपके पेशे खिदमत करना चाहता हूं जब कलीसिया उठाई जाएगी। नंबर 1, खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसों के अलावा किसी को नजर नहीं आएंगे। ये ऐसा समा होगा कि ईमानदार उठा लिए जाएंगे और जो नॉन बिलीवर हैं वो जमीन पर ही रह जाएंगे। और उसके बाद खुदा यीशु मसीह जमीन पर नहीं उतरेंगे बल्कि हवा में मुहलक रहेंगे। नंबर 3, ऊपर जाते वक्त ईमानदार किसी को नजर नहीं आएंगे। क्यों नजर नहीं आएंगे? इसलिए कि वो जलाली बदनों में होंगे। ऐसा बदन जो आदम हवा को दिया गया था वो नहीं जानते थे कि वो नंगे हैं। तो इसलिए जब कलीसिया ईमानदार बिलीवर पोशीदा आमद में उठाए जाएंगे तो वो लोगों को नजर नहीं आएंगे। क्यों नजर नहीं आएंगे? इसलिए नजर नहीं आएंगे कि वो जलाली बदनों में होंगे। तो उसकी एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। नंबर 4, ईमानदारों के गायब हो जाने की खबरें अखबारों, टीवी और रेडियो पर नशर की जाएंगी कि हमारा बेटा दूध लेने गया वापस नहीं आया या ड्यूटी पर गया वापस नहीं आया। लोग ये समझेंगे कि हमारे अजीज किडनैप हो गए। लेकिन वो लोग जो आज कलाम सुन रहे हैं उनको याद आएगा कि हमने ये कलाम सुना था कि ब्रदर जावेद ने ये कलाम सुनाया था कि कलीसिया जो है आसमान पर उठाई जाएगी। तो हो सकता है कि हमारा अजीज आसमान पर उठा लिया गया है। क्या आप रैप्चर के लिए तैयार हैं? क्या आप आसमान पर उठाए जाने के लिए तैयार हैं? 2 आदमी पेट्रोल पंप पर होंगे पेट्रोल डलवाने के लिए। एक जो है पेट्रोल डलवार होगा, दूसरा जो है वो गाड़ी में बैठा होगा, वो गाड़ी से डिसपियर हो जाएगा। वो परेशान होगा कि ये आदमी मेरा अजीज बैठा हुआ था, मेरा भाई बैठा हुआ था, वो अचानक जो है वो गायब हो गया है। तो बड़ी हलचल का ये वक्त होगा। मैं ज्यादा नहीं बात को इसको लंबा कर सकता क्योंकि इतना वक्त नहीं होता। तो आप इस मफहूम को समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और उसके बाद जब कलीसिया नंबर 5, जब कलीसिया उठाई जाएगी तो पाक रूह भी साथ ही उठाया जाएगा। तो शायद आप ये सोच रहे हैं कि पाक रूह क्यों उठाया जाएगा? पाक रूह के रहने की जगह क्या है? वो कलीसिया है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? तो लिहाजा इस बात को आप यहाँ पर मैंने अभी बताया कि जब कलीसिया उठाई जाएगी नंबर 5 तो साथ ही पाक रूह बिठाया जाएगा। पाक रूह क्यों उठाया जाएगा? क्योंकि कलीसिया उठाई गई है। कलीसिया उठाए जाने से पाक रूह का क्या काम है भाई? इसलिए कि पाक रूह कलीसिया में रहता है। जब कलीसिया नहीं होगी तो पाक रूह का क्या काम होगा? आर यू एग्री विद मी? अगर आप मेरे साथ एग्री हैं तो जरूर आमीन लिखें। यस। तो अब उसका हवाला भी मैंने दे दिया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? और खुदा का रूह यह हवाला है 1 कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 16वें आयत का हवाला। तुम अपने लिए कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो।
पहला करंथियों 6 बाब 19 आयत। नंबर 6, जब कलीसिया ठाई जाएगी तो तमाम नामी कल्चरल क्रिश्चियन और गैर कवाम के लोग सब जमीन पर ही रह जाएंगे। कलीसिया आसमान पर चली गई है और बाकी नॉन बिलीवर और गैर मसीही सब दुनिया पर रहेंगे, उनका कारोबार वैसे ही चलता रहेगा। तो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो इसमें बहुत सारे सवाल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जब मैं इस मजमून को सीख रहा था तो मेरे ज़हन में भी बेशुमार क्वेश्चन थे। और जब मैं अभी भी डिसाइपल हूँ, अभी भी शागिर्द हूँ, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि मैं मुकम्मल तौर पर नहीं समझता, मैं उतना ही समझता हूँ जितना खुदा मुझ पर जाहिर करता है। कलीसिया को ठाए जाने के मकासद, पर्पस ऑफ रैप्चर, कलीसिया को आग से गुजार कर पाक करना, इसका जिक्र भी आप लोगों को पहला करंथियों 3 बाब में मिलेगा। नंबर 2, जलाली कलीसिया को बाप के सामने पेश करना, यानी मसीह यीशु उन जिंदगियों को जिसको उसने अपने रहते हुए और उसके लोग थे उनको बाप के सामने पेश करेगा। नंबर 3, कलीसिया को जो है रिवार्ड और इनामात तकसीम किए जाएंगे। नंबर 3, यहां मैं बता रहा हूं पर्पस ऑफ रैप्चर। नंबर 4, आने वाली मुसीबत से कलीसिया को बचाना, मकाशफा 3 बाब 10 आयत। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 10। नंबर 5, बनी इस्राइल के लिए खुदा का प्रोग्राम जो कलीसिया की वजह से रुका हुआ था दोबारा शुरू होना। तो ये मैंने सवाल था कि ठाए जाने के मकासद क्या हैं, तो आप दोबारा से ज़रूर मेडिटेट करना, इसको समझना। अगर कोई सवाल आपके ज़हन में पैदा हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर विद मी एंड टू आस्क, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 7, कलीसिया के ठाए जाने के बाद के वाकयात। जब कलीसिया आसमान पर चली गई है तो फिर जमीन के हालात क्या होंगे। मुखालफे मसीह के 7 साला दौर का आगाज होगा। मुखालफे मसीह यहूदियों के साथ 1 हफ्ता सुलह का अहद बांधेगा। दानियल 9 बाब उसकी 27 आयत। वो 1 हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निसफ हफ्ता में जबिया और हदिया मकूफ करेगा। 7 साल का दौर 2 हिस्सों पर यानी 3.5 सालों पर मुश्तमिल होगा। पहला हिस्से में सुकून होगा और दूसरे हिस्से में 1000 सानी होगी और वो हैकल में बैठकर अपने आप को खुदा करेगा और हैकल को तोड़ देगा। यह हवाला भी मैंने पहले बता दिया, 2 तसल्लीकियों 2 बाब 3 से 4 आयत तक। जो मुखालफत करता हर एक से जो खुदा और माबूद कहलाता अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा ज़हर करता है। वो यहूदियों से आलमगीर परस्तश डिमांड करेगा और यहूदी इनकार करेंगे। मुखालफे मसीह यहूदियों के खिलाफ हो जाएगा। आलमगीर जंग होगी जिसे हम 3rd वर्ल्ड वार कहते हैं, जिसका माहौल जो है इस वक्त बन रहा है और कोरोना वायरस भी उस कड़ी का हिस्सा है। आने वाले जो मैंने इल्यूमिनाटी का कल जिक्र किया था, बुध के दिन जिक्र किया था, ये सारा एंटी क्राइस्ट और इल्यूमिनाटी और ये सारी चीजें ये कड़ी है। और पशीदा आमद
इन मसाइल से थर्ड वर्ल्ड वार से पहले ऊपर उठा ली जाएगी। ये बड़ी मुसीबत का दौर होगा, ये यकूब की मुसीबत का दौर होगा, इसराइल की मुसीबत का दौर होगा। और ये पॉइंट समझने का पॉइंट है कि इसमें कलीसिया शामिल नहीं है। ये कलीसिया उठा ली जाएगी और ये जो है यकूब की मुसीबत का दौर होगा। जी हाँ, ये आप हवाला जात पढ़ ले, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिसको मैं बाइबल से साबित ना करूं। यिर्मयाह नबी का सहीफा 30 बाब और उसकी 7वीं आयत, दानियल 12 बाब उसकी पहली आयत, मत्ती 24 बाब, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स नंबर 1। ये हवाला जात आप लोगों ने खुद पढ़ने हैं। जब 7 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर ये कलीसिया जो आसमान पर उठा ली गई है, ये कलीसिया आसमान से वापस आएगी 1000 साला बादशाह के लिए। तो क्या कोई रेफरेंस बाइबल में से मेरे इस ख्याल को सपोर्ट करता है कि कलीसिया जो आसमान पर उठाई गई है वो दोबारा जब मसीह बादलों पर आएंगे तो मसीह के साथ जो 7 साला दौर है, जो कलीसिया पहले ठाली गई थी, ये कलीसिया दोबारा मसीह के साथ जमीन पर 1000 साला बादशाह के लिए आएगी। जी, तो मेरा सवाल था कि क्या कोई ऐसा हवाला है जो इस बात को सपोर्ट करता है? जी हाँ, मेरे साथ देखें, मकाशफा 21 बाब उसकी 2 आयत, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 2। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, यानी उतरते देखा। जो कलीसिया ठाई गई थी, अब वो नीचे आ रही है मसीह के साथ। और उस दुल्हन की मानंद रास्ता थी जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। 7 साल के बाद खुदामंद की ज़हरा आमद होगी। ये पॉइंट बहुत ही वैलिड और समझने वाला है। ये वो वक्त होगा जब यहूदी मसीह पर ईमान लाएंगे। अभी तक यहूदी मसीह पर ईमान नहीं लाए, वो अपने मसाया का इंतजार कर रहे हैं। और उनका जो मसाया वो 666 है, और उसका वो जो मैंने बताया इल्यूमिनाटी, ये उनका इंतजार करें। वो अपने मसाया का इंतजार कर रहे हैं, और जिसका अदद 666 है, ये उसका भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब मसीह यीशु दोबारा आसमान से जमीन पर आएंगे तो उस वक्त यहूदी लोग मसीह को पहचानेंगे और पहचान लेंगे ये तो वही है जिसको हमने मसलूब किया था, और अपनी छाती पीट पीट कर रोएंगे जैसे कोई इकलौते के लिए मातम करता है। अगर आप बाइबल के डिसाइपल हैं तो आप मेरे इन हवाला जात को, मेरे इन बातों को समझ रहे हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। कलाम मुकद्दस में ये जो अभी मैंने पढ़ा है आपके सामने, पहले मैंने बताया कि कलीसिया आसमान से जमीन पर आएगी, तो मैंने 2 हवाले बताए थे, शायद मैंने एक ही बताया, दूसरा नहीं शेयर कर सका। मकाशफा 21 बाब 2 आयत है, फिर मकाशफा 19 बाब उसकी 9 आयत है। ये कलीसिया के जमीन पर आने के हवाले से 2 हवाला जात आपसे मैंने शेयर किए हैं। और फिर जो बात मैंने की कि जब खुदा यीशु मसीह आसमान से आएंगे तो यहूदी कौम खुदा यीशु मसीह को पहचान लेगी
اور पहचानने के बाद ज़ारों कतार वो रोएंगे, छाती पीट पीट कर रोएंगे, जैसे कि कोई अकलौते के लिए मातम करता है। तो चले जी, ये हवाला भी आप नोट कर लें। मकाशफा पहला बाब उसकी 7वीं आयत, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स नंबर 7। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी। पहले जो बताया पशीदामंद में सिर्फ अपने देखेंगे, और अब कहा जा रहा है कि हर एक आंख उसको देखेगी। ये फर्क सामने आ गया, ये बहुत जबरदस्त फर्क है। ये आज के मजमून की जान है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरेकी। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। आए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? ये यीशु जो बादलों पर ठाया गया, फिर इसी तरह बादलों के साथ आएगा। तो ये हवाला जो मैंने शेयर किया, मकाशफा पहला बाब 7 आयत, ये उसी की कड़ी है। और हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे छेदा था वो भी उसे देखेंगे। जिन्होंने उसे छेदा, हाथों में कील गाड़े, पैरों में कील गाड़े, सर पर कांटों का ताज रखा, कोड़ों से मारा, उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई, वो पहचाना नहीं जा रहा था, उसका पसीना खून की बूंदे बन बन कर गिरा। तो जिन्होंने उसे छेदा, जिस सिपाही ने भाला मारा और पानी और खून बह निकला, ये तमाम लोग ज़ारों कतार से रोएंगे। मेरी बहन, मेरे भाई, ये सच्चाई है, आप इसको टाल ना दें। आप जो है इस कलाम पर जो है कोई दो राय ना रखें, ये एक सच्चाई है। तौबा करें अभी, और इसी वक्त मैं कलाम को वाइंड अप करने वाला हूँ और यहीं पर मैं कलाम को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हमारा वक्त जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद जो 1000 साल बादशाहत होगी और वो ज़मीन पर होगी। और अब जो है मंडे को हम दोबारा ऑनलाइन आएंगे, और इसके साथ साथ जो है वो 70 हफ्तों की जो रोया है वो बड़ा ज़रूरी ख्याल है, जिसका तल्लुक इस मज़मून के साथ है, 1000 साल बादशाहत के साथ है। वो मैं आप लोगों के साथ 70 हफ्तों की रोया को शेयर करूंगा। तो खुदावंद इस जिंदा कलाम के वसीला से मुझे और आपको ढेरों बरकत अता करे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई दुआ कराना चाहता है तो हम चंद लम्हे दुआ में ठहरेंगे। आप अपना दुआ के लिए अपनी जो मुनाजात है वो भेज सकते हैं, हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं। एक सवाल आया, शकील सलाम पास्टर जी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये बातों की पहली कलीसिया कौन सी है, ये बताएं कि पहली कलीसिया कौन सी है। अगर आपने मेरा मजमून सुन लिया है तो ये सवाल करने की आपको जरूरत ही नहीं है। मैंने शुरू ही में मिस्टर शकील आपको बता दिया था। थैंक यू। आए खुदामंद खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो आज के इस फेलोशिप के लिए, इस रफाकत के लिए, इस मौका इबादत के लिए। हाजिर जमात को ब्लेस कर, हाजिर जमात को बरकत दे। और ऐ खुदामंद खुदा, फिर मंडे को हमें प्रिपेयर कर, तैयार कर। जितने लोगों ने इस कलाम को सीखा है उन सब को बरकत दे। आए खुदा, तुम्हारी दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मैं उन तमाम बहन भाइयों को जो ऑनलाइन आए, जिन्होंने इस खूबसूरत मजमून को सीखा, मैं आप सबको जाते जाते एक बार फिर सलूट करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
کہ آپ ضرور ہمارے چینل کو BICPF TV چینل کو سبسکرائب کریں اور کلک بٹن کو آئیکن اس کو کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.